Hello friends, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I am Dr. Kanksha Gupta. Is again new video that we have on the topic of ANOG. So as the name suggests, acute means rapid, necrotitis means necrosis of tissue, ulcerative means we have ulcer, and gingivitis means there is inflammation of gingiva. So as the definition says, it is a microbial disease of gingiva in the context of an impaired host response, which is characterized by death and slogging of gingival tissue and may accompanied by systemic conditions. Okay, so we have other name of ANOG. We have track mouth, Winchell's stomatitis, Winchell's angina, Purite stomatitis, and fatigue stomatitis. This is all we have other name of ANOG. Now we have a predisposing factors. In the predisposing factor, we have smoking, pre-existing gingivitis, injury to gingiva, and we have psychological stress, nutritional deficiency, and GID disease. These all are predisposing factor of ANOG. So now we have a pathophysiology. So pathophysiology. So what happens in pathophysiology? So in this we have a psychological stress and anxiety, due to which there is increased corticosteroid stimulation. Okay, due to which what happens, there is immunosuppression. अब इम्यूनोसप्रेशन इसकी एक तो एंजाइटी की वजह से हो रहा है और हमारा इम्यूनोसप्रेशन हो रहा है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी. अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अब जो इम्यूनोसप्रेशन है वो हमारा लीड करेगा देयर इज इंक्रीज इन बैक्टीरियल ग्रोथ. ओके, बैक्टीरियल ग्रोथ. अब जब हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी उसकी वजह से वी हैव ANOG. और बैक्टीरियल ग्रोथ हमारी किसकी वजह से हो सकती है? ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग जिंजाइवा. ओके, सो बेसिकली पैथोलॉजी में क्या हो रहा है कि हमारा सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी है. स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हमारा इंक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टिमुलेशन होगा. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? देयर इज इम्यूनोसप्रेशन. अब इम्यूनोसप्रेशन या तो एंजाइटी की वजह से हो रहा है या हमारा वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है. ठीक है, ये हमारा लीड करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ को. इसकी वजह से हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी और इन्वेजन हो जाएगा. बैक्टीरियल ग्रोथ हमारी प्री एग्जिस्टिंग जिंजिवाइटिस पहले हो रखी है उसकी वजह से भी हो सकती है. This may lead to NOG, that we have necrotic ulcerative gingivitis. We have signs and symptoms. So as we are dentists, we are basically appreciate these signs and symptoms to identify the condition. So first factor which we see extremely while there is extremely sensitive to touch, there is pain which is constantly radiating, and there is a pain which is increased due to hot and spicy food, or we have there is loss of sensation, and we have the patient may complain of a metallic taste, and there is what happens this in the interdental area, interdental gingiva, there is a punch out, or we like punch out depression we appreciate. There is loss of sensation and diminished pleasure of smoking. क्या होता है, ये हमारा जो ये हमारा नुक है वो हमारा बेसिकली मार्जिनल जिंजाइवा पे दिख रहा है. बट अगर ये हमारा अटैच जिंजाइवा और हमारा एल्वोलर म्यूकोजा पे भी होता है तो देयर इज अ मेम्ब्रेन होती है, देयर इज अ ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेनस स्लॉग होता है विच वी अपीयर ऑन दी अटैच जिंजाइवा, मार्जिनल जिंजाइवा. ओके, और वी हैव अप्रिशिएट दी मेटालिक टेस्ट, लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन जो एक्सट्रीमली देयर इज एक्सट्रीमली टच, मतलब प्रेशर डाल देंगे, एक्सट्रीम प्रेशर डालेंगे उसकी वजह से प्रेशर होता है. ठीक है, दिस इज ऑल आर वी हैव फटीग ऑर्डर, और वी हैव increased salivation. These are factors which we see in the clinical sign and symptoms. Okay, so there is one important factor, one important point which we have that there is no pocket formation. हमारा नेक्रोसिस हो रहा है जिंजाइवा का टिश्यू का जब नेक्रोसिस होगा तो देयर इज अ जिंजाइवल रिसेशन, नॉट जिंजाइवल पॉकेट. तो देयर इज नो पॉकेट फॉर्मेशन, ओनली जिंजाइवल रिसेशन अभी सी. एंड वी हैव एक्स्ट्रा ओरल फीचर्स में हमें दिख रही हैं. वी हैव fever, headache, or we have increased elevated body temperatures,
stress, anxiety. These all are factors which we appreciate in the extraoral features. Or we have lymphadenopathy. Treatment part. In treatment we done 3 visits. First visit, second visit, third visit. तो फर्स्ट विजिट में क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी ग्रेन मेम्ब्रेन होती दिखी थी हमें क्लिनिकल फीचर्स में अटैच जिंजावा और हमारी एल्वुलर म्यूकोजा पे, तो इस ग्रेन मेम्ब्रेन को हटाएंगे और वी हैव लाइक नॉन अटैच डेब्रीज हैं, उन सबको हटाएंगे, रिमूव करेंगे व्हाइल आफ्टर अप्लाइंग ऑफ LA. ठीक है. सेकेंड वी डन व्हाट वी डन. सेकेंड हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि वो रिंस करे अपना माउथ किससे, 3% ऑफ H2O2 विच इज इक्वली डायल्यूटेड विद वार्म वाटर. ओके. फिर पेशेंट की हम क्या कह रहे हैं, अगर पेशेंट का हमारा सिस्टमिक डिसीज है, ठीक है, तो हम उसको एमॉक्सिसिलिन दे रहे हैं, दैट इज 250 mg और 500 mg QID, लाइक 4 times a day. ठीक है. अगर हमें और वी गेव दी मेट्रोनिडाजोल विच इज 250 mg एंड 500 mg 3 times a day. ठीक है. सेकेंड विजिट में आफ्टर 1 to 2 days आफ्टर फर्स्ट विजिट के 1 to 2 days बाद हम पेशेंट को बुलाएंगे, उसमें हम स्केलिंग करेंगे और ओरल हाइजीन देंगे. वाइल इन थर्ड विजिट में हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट का आफ्टर सेकेंड 1 to 2 days ऑफ सेकेंड विजिट we done scaling and route planning. Okay. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो 3% H2O2 का रिंस कर रहा था वो माउथ से वार्म वाटर से, उसको हम रिप्लेस कर देंगे क्लोरहेक्साडीन से. ठीक है. क्लोरहेक्साडीन से हम कंटिन्यू कराएंगे 1 to 4 week. ओके. अगर इसके बीच में अगर कोई टूथ एक्सट्रैक्शन होगा और हमारी पेरियोडोंटल सर्जरी होगी, वो हम डिले कर देंगे अबाउट 3 weeks के लिए. Okay, so this is all about Anup, that is acute necrotic ulcerative gingivitis. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.